Hello, everyone. Hi, Hello, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm good as well, ma'am. Thank you for asking. Yeah. So, since it's almost 6, I believe we should start with it. So, before beginning, I would like to begin with the formal salutations. So, good evening, everyone. It is my utmost privilege to welcome you all to today's webinar on the topic of legal internship, a guidance for law students, organized by Event Department of Vidhi Ekta Sang. My name is Priyanka Gurjar, and I will be your host for the evening. So, just a quick introduction of what is Vidhi Ekta Sangh. So, for those of you who don't know, Vidhi Ekta Sangh एक organization है which aims to empower law students और इसकी नींव unity से है. So, whether you're a law student, you're a legal professional, you're a graduate, we provide internships, moot court experiences, debates, and all the sort of things which can help you build your legal profession in a much better way. So the very reason ki coming on to the topic, the very reason why we chose this topic of internship. For those of you who don't know, तो internships जैसा कि हम सब जानते ही है कि play a very crucial role in a law student's life. तो like internship से आपको सिर्फ practical experience नहीं मिलता है. Internship से आपको actual skills सीखने का मौका भी मिलता है जैसे कि researching skills, debating skills, and much more. Internships also give you the chance to get to form networks with individuals. And as legal professionals, we all know कि networking, researching और drafting जितनी importance रखता है. So internships also give you the exposure to different legal specializations, and internships also enhance your corporate confidence. So in brief, internships bridge the gap between your academia and the legal profession by empowering students to apply their theoretical knowledge in the real world applications and scenarios. So that was for the topic. Now, coming on to our lovely guest of the evening, Ms. Dashani Guha ma'am. So, ma'am is a dedicated and experienced lawyer with a strong track record of success in various legal fields, in various laws ranging from corporate to international law. For those of you who don't know, ma'am is a first generation lawyer from her family who did her bachelor's in international relations from Amity University and then did her LLB from Campus Law Center, Delhi University. Ma'am has also worked in many international law firms. Ma'am has a track record of she has mentored 50 plus students, and uh, ma'am works for the betterment of the law students by providing them mentorships. So she's currently doing her LLM in EU Law and International Law from Symbiosis University, Pune. Ma'am, thank you so much for joining us today, and we are so happy to have you here. Ma'am, you can begin with whenever you're ready. Perfect. Thank you. Thank you so much for introducing me and telling me about, what your organization does. And yeah, so the topic that was given to me today is something that I've closely talked about throughout my law school journey as well as post that, because that's, I think, the most talked about topic for every law student out there, which is legal internships. And I think you guys have a lot of questions, and I think those questions have been passed on to me. And I'm going to try my best to answer that throughout this session that we have today. If not, the chat box, you can definitely write something, and then maybe the team can tell me what the questions are and I can answer them later on after today. So, let me just begin with as to, what exactly does a legal internship compromise of? What exactly is a legal internship and what does it compromise and what do you do about it? So, the legal internships are ranging from litigation to law firms to corporate houses to NGOs to research internships. So the range is very vast. मतलब आपके पास इतने options हैं कि आप pick and choose आराम से कर सकते हो, अपना niche build कर सकते हो, आप choices देख सकते हो, आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है. तो कोई limitations नहीं है, कोई bars नहीं है. But in internships की importance क्या है in our legal education altogether, you might ask. तो importance ये है कि सब पढ़ रहे हैं हम law schools, be it any law school across the globe. You and I are starting the same thing when you're going for an LLB. But the point is कि मुझे और विकास एंड विधि हम सब में क्या डिफरेंस होगा अगर कोई कल को हम अगर हम कल जॉब में जाए या लिटिगेशन प्रैक्टिस में जाए. सो द डिफरेंस विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड इन लाइफ, एंड दैट इज व्हाट इंटर्नशिप्स प्रोवाइड यू.
you go into the internship, you see as to how what you were studying in four walls के अंदर, classrooms के अंदर जो आप पढ़ रहे थे, वो कैसे out in the world practice हो रहा है. Be it corporate contract law that you study, be it civil constitution laws that you study, or be it criminal laws that you study. तो इन सब की एक्चुअल एग्जिस्टेंस, इन सब की मेन स्कोप क्या है, वो हमें इंटर्नशिप के ड्यूरिंग ही पता चलता है. And that is the first very important aspect of legal and the reason why you should be interning. Second is for self awareness, because if you don't intern you might not know what you're good at. आपके क्या interests आपको पता ही नहीं चलेंगे. आप 3 years down the line you will not be able to answer the question कि दशानी आपका favorite पार्ट ऑफ योर लाइफ क्या था, एक्सपीरियंस क्या था आपके लीगल इंटर्नशिप्स के ड्यूरिंग या लॉ स्कूल के ड्यूरिंग, या व्हाट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर यू लुकिंग फॉर. क्योंकि आप मे बी कुछ भी बोल दो, सीइंग इन द मार्केट, बट दैट इज नॉट योर इंटरेस्ट. बट हाउ डू गेट टू नो दैट? बाय इंटर्निंग. जैसे मैंने बहुत लिटिगेशन इंटर्नशिप्स करी है, मैंने कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स करी है, मैंने रिसर्च इंटर्नशिप्स करी है, मैंने एनजीओ इंटर्नशिप्स करी है. एंड if I go tomorrow and I work for a firm or I work for an organization or I have my own practice, I can stand by that decision because I've experienced everything. But कल को ऐसा होता कि मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की होती, मैं लिटिगेशन प्रैक्टिस करने लग जाती, तो मे बी 1-1.5 महीने बाद मुझे पसंद नहीं आता, I might have to change. But I could have decided that during my law school. But अब मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ after doing all of this after law school. तो जब हमारे पास इन हैंड टाइम है, तो why to delay that process? So that is the second most important reason. Third important reason is it equips with a lot of skill that is required in the real world. आप मुझे इतने बच्चे पूछते हैं कि मैं ड्राफ्टिंग कहाँ से सीखूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखूं, मैं मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम द इंडस्ट्री. बट द प्रॉब्लम इज ये आपको कोई कोर्स नहीं सिखा सकता, कोई मेंटोर आपको बिल्कुल बता सकते कि व्हाट इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ. बट आप सीखोगे कैसे? जब आप वो प्रैक्टिस करोगे, जब वो करोगे ऑल टुगेदर. एंड दैट इज व्हाट यू डू इट इन अ इंटर्नशिप. You go argue matters in the court, you draft petitions, you draft contracts, you do a lot of legal research. Like legal research, your college wale research is a very different research. What you do for cases is very different, and you do that during course. कोई ड्यूरिंग इंटर्नशिप कोई भी कोर्स आपको बता तो देगा कैसे करना है, बट आप तभी करोगे ना जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी. इंटर्नशिप में वो रिक्वायरमेंट क्रिएट की जाती है. तो इसीलिए थर्ड रीजन है कि जो आप प्रैक्टिकल आप कल को प्रैक्टिस करोगे, वो स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 major reasons, and I think this is the basic reason that you should be going for a good internships. अब जैसे मैंने बताया कि इतनी टाइप की इंटर्नशिप्स हैं, तो कि अब इसके अलावा और क्या क्या मैं कर सकती हूँ. ठीक है, अब जुडिशियल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नॉन प्रॉफिट हो गया, फॉर प्रॉफिट्स हो गए, लॉ फर्म्स हो गई, लिटिगेशन हो गई, मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस अवेलेबल है. तो कल को आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट कैन टेल मी दैट आई डोंट हैव अ स्पेस टू वर्क और आई डोंट हैव अ स्पेस टू लर्न, बिकॉज इट इज वाइड and as many options as possible. It's like Baskin Robbins for the world is a Baskin Robbins for law students. You can go for so many other flavors and options. Why to limit yourselves to just the basic ones? And now the question comes, I think I saw this question also which was provided to me कि मैं कैसे जानूं कि this is the right internship for me or this is the right direction that I go for. See, there is no perfect answer कि मेरे लिए right internship कौन सी. At least first internship will never be a right internship. That this I can tell you from practical experience. ठीक है, what you need to do is first realize what all subjects interests you. ठीक है, पहले तो आप ये जान लो. And how do you do that? You study, you put your time into it, you get good scores, you write research papers, you do publications, or you do your assignments and what all. Then you figure out कि इसके अंडर if you want see that further कि मैंने अब मुझे ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पसंद आ रहा है, so let me go find a civil lawyer who does constitutional matters and does it in the good courts. So let me reach out to him, and that is an internship that you create. So the pehla step is you need to realize what subject interests are you. That can really help you to get a good internship. Secondly is how do you visualize yourself after 3 years. ठीक है, मतलब अगर आप जैसे 3 year LLB कर रहे हो या 5 year LLB कर रहे हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ आप एक रोड मैप बनाते जाते हो कि मैं 5 साल बाद मुझे ऐसी एक नौकरी चाहिए या ऐसी एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए या ऐसा मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है या मुझे अपनी प्रैक्टिस इस फील्ड में करनी है. तो जो आपने डिसाइड कर लिया तो आप उसी को कंटिन्यू करो, रोड मैप बनता जाएगा आराम से आपके सामने. तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि दिस इज द राइट इंटर्नशिप. एवरीथिंग इज अ गुड और अ बैड इंटर्नशिप, दैट्स ऑल आई से. एंड उसमें भी हाउ डू यू रियलाइज व्हाट इज अ गुड इंटर्नशिप एंड व्हाट इज अ बैड इंटर्नशिप इज फर्स्ट व्हाट यू गेट बैक फ्रॉम इट. कि आप घर क्या लेके जा रहे हो उस इंटर्नशिप से. डेफिनेटली वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेंटर या आपके सीनियर का
एटीट्यूड टुवर्ड्स यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट योर रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बस चले जाना, ऑफिस चले गए, 2-3 फोटोज खिंचवा लिए, 2-3 रील्स बना लिए, एंड देन यू कम बैक एंड यू लाइक अच्छा ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड, नोबडी गिव मी एनी वर्क सो आई डिडंट डू एनीथिंग. But that's the wrong approach. You put in almost 10 to 12 hours in an office and you didn't take anything back home, then what point is it? वो रील 2 मिनट बाद खत्म हो जानी, करो, कोई नहीं रोक रहा है. I have done it myself and I've had fun also, but that did not mean that I curtailed my opportunity just till there. Learn from it. बहुत बच्चे मुझे कहते हैं हमें केस फाइल पकड़ा देते हैं, दैट्स इट. केस फाइल पढ़ना इज ऑल्सो अ स्किल. लर्न दैट, बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू 300 पेजेस ना, अभी आप 300 पेज एक केस फाइल मिल रही है मे बी दिन की, कब एक टाइम आएगा जब 10 केस फाइल्स पढ़ने पड़ेगी दिन के. बट वो कैसे प्रैक्टिस इनकलकेट होगी? जब आप अभी से करोगे. ड्राफ्टिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे ड्राफ्टिंग सीखनी, रीच आउट टू योर सीनियर एंड आस्क देम कि नो सर, मैम, आई वांट टू लर्न दिस, विल यू हेल्प मी लर्न इट? क्या ना ही बोल देंगे, बट पूछ के तो देखो. बस जाके बैठ के आ जाना, घर आने से कुछ नहीं होगा. Third is what you need to do to get a good internship is find कि वो उनका विजन, उनका एक्चुअली वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको. एंड एक सर्टिफिकेट और तुम्हें सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि हमारे कोर्स में है, एलएलबी में एक चाहिए होती है, दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, देन डोंट डू एन इंटर्नशिप. इंटर्नशिप शुड बी दैट यूर गेटिंग अ गुड नॉलेज, स्किल डेवलप हो रहा है, नॉलेज हो रही है और आप नेटवर्क कर रहे हो. ये तीनों चीजें अगर आपके इंटर्नशिप से है, वट एवर द इंटर्नशिप वॉज, इट इज अ गुड इंटर्नशिप. आई एम टेलिंग यू. कल को अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने मेरी इंटर्नशिप से आप मेरे पास इंटर्न करना है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू कम एंड इंटर्न विद मी एंड यू टेल मी कि दिशानी, आई लर्न ड्राफ्टिंग विद यू, आई लर्न हाउ टू do e-code filing, and third you tell me Dishani, you and I have a great relationship, so tomorrow if I want a referral कि आप मुझे refer कर सकें, and I say yes, then this internship was very fruitful for you. अगर इन तीनों में से मैं तीनों ही ना कर दूं, then whatever internship that you done with me was a very bad internship. ठीक है, because third जो मैंने बताया, networking is very important. because आपने अगर 1-1.5 महीना किसी को दिया और आपने relationship build नहीं किया, तो आपने वो 1-1.5 महीना भी क्यों दिया? My point is, कल को क्योंकि दिस इंडस्ट्री में ना बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट मोस्टली अपॉर्चुनिटीज वर्ड ऑफ माउथ से जाती है, रेफरल सिस्टम से काम करती है. सो यू माइट नॉट हैव अ पेरेंट हु इज इन द लॉ इंडस्ट्री, यू माइट नॉट हैव अ रिलेटिव इन द इंडस्ट्री, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन पर्सनल नेटवर्क. अब जैसे मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मैंने जितनी इंटर्नशिप्स करी है, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है. मैंने जिनके साथ भी काम किया, क्योंकि कल को देयर गोना बी इन द इंडस्ट्री एंड इफ आई नीड एनी हेल्प, बिकॉज आई एम अ यंग पर्सन, आई एम लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, दैट इज where I've gotten all my opportunities from, all my referrals from, even for my LLM degree, if I wanted my reference letters, these were the people that I reached out to. So आज अगर मेरा कुछ भी हो रहा है, it's because of the great network system that I've built for the past 3 years, be it my seniors, be it my professors, be it my peers, ठीक है, and even with my juniors in current times. So it's all working out, and I am making money because of my network. I am studying to a great school because of my network. So third very important aspect of an internship is network. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी. मैंने एक ऑनलाइन इंटर्नशिप करी थी, मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज बेस्ड इन रांची एंड आई एम बेस्ड इन दिल्ली, एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स. मे बी साल में एक बार मिलते हैं, बट वी हैव सच अ गुड रिलेशनशिप दैट इफ आई गेट एनी केसेस इन दिल्ली and she gets any cases in Delhi, she passes on to me, and if I get any cases about Ranchi, I pass it on to her. We have built that trust. जबकि हम साल में एक बार मिलते हैं, probably 3 बार फोन पे बात करते हैं, but because of the network that I've created and we've provided value in each other's life, so that is what internships are. And मैं सिर्फ internship में मिली थी, मैं उसका law school भी नहीं जानती probably, we have never seen each other's law school, we don't know much about each other's personal life, but that's it, कि हम दोनों professional, बहुत अच्छे professional friends हैं, and we love giving each other work, and that's how we're making money through each other. So we're providing value. So that is what you need to do in an internship also. Build that network. ठीक है, do not waste your internship. जब अपनी इतनी मेहनत से कर रहे हो, पाई है, तो उसको वेस्ट मत जाने दो. I know it is unpaid, probably most of the internships are unpaid, but yet do not crib and cry about it, because you can take something back home from every internship that you do. That's exactly what I say. Every internship is a good opportunity if you work for it. ठीक है, फिर टॉकिंग अबाउट कि मेरे को कब इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या कितनी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ना कोई बार है. आपको जितना कंफर्टेबल लगता है, आपके शेड्यूल के साथ जितना मैच होता है. कुछ लॉ स्कूल्स आर वेरी इजी अबाउट देयर अटेंडेंस, कुछ लॉ स्कूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट. So I might say 10, but then the person who has a strict attendance might not able to say it. So there is no limitations कि आपको minimum इतनी करनी चाहिए, maximum इतनी करनी चाहिए. But I would say कि if you're in a 5-year law, third year is a good time to start internships. And if you're in a 3-year LLB, second year is a great time to start internships, because now you have a good understanding of law, okay? And now you are in the terms of building a career. You're thinking about building a career after now, तो आप एक
रोड मैप बिल्ड कर सकते हो अपने लिए, एक नीश स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी टैलेंट क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, और उनको अलाइन करके मैं कैसे एक लॉन्ग टर्म गोल बनाऊं। तो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग आफ्टर थर्ड ईयर ऑफ योर लॉ स्कूल एंड फिफ्थ ईयर 5 year law and second year in your 3 year law. I think that's a good benchmark. And I would also say कि minimum 2 months की internships होनी चाहिए, because एक महीने की इंटर्नशिप करके ना कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग स्टफ, यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू द वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग, एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द हायरिंग मैनेजर और द पर्सन इन चार्ज, आपका टाइम आ जाता है छोड़ने का। तो वो भी आप एक इंप्रेशन भी नहीं बना पाए उन पे, ना आप कुछ ज्यादा सीख पाए। तो इसलिए 2 months इज मिनिमम, आई वुड से, कि rather than doing multiple different internships, stay in a good organization, stay with good people, learn from them for a good amount of time. That's some advice that I can give you from my personal life, क्योंकि मैंने 1 month की internships भी करी हैं, I've done longer internships also, so that is something that I noticed from my own experience. Now I think also I saw a question as to, what should I do to get a successful internship. अब देखो, internship करने के दो ही तरीके हैं। एक है, या तो तुम जो वेकेंसीज निकलती हैं उनके थ्रू अप्लाई करो, उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा रेज्यूमे और कवर लेटर। और थर्ड, तुम्हारा दूसरा जो तरीका है, या तो यू रीच आउट टू समबडी दैट यू रियली लुक अप टू इन द इंडस्ट्री, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू देयर ईमेल, और थ्रू नेटवर्किंग इवेंट्स दैट यू गो थ्रू, एंड यू रीच आउट टू देम डायरेक्टली कि सर, मैम, or company, that I'm looking forward to working with you, so is there any kind of internship opportunity under you? So that is one way. तो उसमें तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है, बिकॉज यू हैव टू सेल योरसेल्फ देयर। बट इसमें तुम्हें सिर्फ अपने रेज्यूमे पे काम करना है और कवर लेटर पे काम करना है, अगर वैकेंसी के थ्रू जाते हो। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, हैव अ लुक एट इट, कि जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, जो वैकेंसी पे आप अप्लाई कर रहे हो, गो थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो लॉ फर्म है या कंपनी है या कोई लिटिगेटर है, तो किस टाइप का काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज योर रेज्यूमे शुड अलाइन विद इट, और योर इंटरेस्ट शुड अलाइन विद इट। एक मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से आज नहीं चलेगा, बिकॉज आज का टाइम is more on customization, that we pay customized clothes के लिए ज्यादा पैसे, customized car के लिए ज्यादा पैसे, customized चीज क्या ज्यादा वैल्यू है देन अ जनरल थिंग। तो इसीलिए आपको अपने रेज्यूमे को भी बढ़ाना है, तो कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने रेज्यूमे, अपने कवर लेटर को अकॉर्डिंग टू द पर्सन और द पीपल और द कंपनी दैट यू रीचिंग आउट टू। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन अ लिटिल बिट मोर। बट आज के जमाने में चैट जीपीटी नाम की बहुत एकदम कमाल की चीज आ गई है। use it for your benefit, reach out to it on prompts, using good prompts, and customize your CV without any hassle. You might think, Tashani, I can't do it for every internship that I apply to. Use AI. Why you do not use all of these free applications that is available to every student? ये बनाया ही हम जैसे बच्चों के लिए है, जो lazy हैं, they don't want to spend money, so do it, go for it, use it. ठीक है, कोई शर्म नहीं है उन चीजों को यूज करने में। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कवर लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम रेज्यूमे, क्योंकि अब वो रेज्यूमे का ही तुम अगर समराइज करके तुम कवर लेटर में डाल दोगे तो कोई पॉइंट नहीं है मैं रेज्यूमे भी खोलूं। सो कवर लेटर शुड मोस्टली टॉक अबाउट एज टू व्हाई यू वांट टू वर्क विद मी, what is it that attracts you, and why you're useful to me, like why do you think you will be a great candidate for my organization. So ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है रेज्यूमे और कवर लेटर में। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से बनाना, अच्छे से लिखना, अच्छे से देखना। ठीक है, there's a lot of creators out there on LinkedIn, on Instagram, who give good ideas as to how a good resume is built. So please reach out to them. थोड़ा से फैशन एंड म्यूजिक रील्स छोड़ के वो रील्स भी देख लिया करो, काफी हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कि अब मैं जो मैसेज करके क्या मेरे को सुनेगा, देखो, maybe first time when you text somebody or you reach out to somebody, that person doesn't. If you reach out to 10-20 people, ठीक है, ऐसा नहीं कोई नहीं कर, ठीक है, तो उसमें उसमें कोई वो नहीं है कि और शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि व्हाट इफ दैट पर्सन थिंक्स भाई वो तुम्हारा घर वाला नहीं लगा है, तो प्लीज गो फॉर इट, बी एज बेशरम एज आई से, कि जेनजीज जो आज हैं, हम, that is one talent I think they have, and I think the older generation is lacking, and I think that's a great skill and talent, is like they do not care, they're like besharam, they do not care as to what people are thinking, so they do what they feel like. So yeah, reach out to somebody, do not fear. Max to max क्या होगा, तुम्हें reply नहीं मिलेगा, that's it, that's all that's gonna happen. Nobody's gonna look down upon you, कोई याद भी नहीं रखेगा कि ओ ABCD बच्चे ने मुझे text किया था। तो please इतना शर्माओ मत, reach out to it. What if this actually opens a very good door for you? So think that way, positive हो, हमेशा optimistic हो। ठीक है, pessimist बन के किसी ने आज तक जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ा, simple as that। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि we've talked about how to maximize our internship, कैसे हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस की मैंने बात कर लिया, हमने ये बात करी कि इंपॉर्टेंस क्या है, राइट इंटर्नशिप क्या होता है। फिर हम बात करते हैं अब कि हम क्या क्या स्किल डेवलप कर सकते हैं।
ड्यूरिंग द इंटायर इंटर्नशिप प्रोसेस, यू नो व्हाट ऑल इंटर्नशिप में हमें क्या क्या एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। पहले तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो यू नो आई वुड से कि व्हेन you've decided to work somebody, तो कुछ तो चीज होगी ना कि या तो कंपनी ने तुम्हें अट्रैक्ट किया या तो किसी सीनियर ने तुम्हें अट्रैक्ट किया, कुछ तो चीज होगी ना जस्ट दैट हैज पुल्ड यू टू दैट इंटर्नशिप। तो focus on it and think कि why is that particular thing like that and what if you had it। मे बी कल को मैं एक सीनियर के पास इंटर्नशिप करने गई और मेरे को लगा कि यार ये कितना कैरिज्मेटिक सीनियर है, ही इज सो गुड विद क्लाइंट्स, ही इज सो यू नो वेल वर्स्ड विद द लॉ एंड एवरीथिंग, बट मैं ये सोच के बस वापस आ गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। आई शुड लर्न फ्रॉम हिम, यू नो कि कैसे कर रहे हैं वो ये सब, what has he done to get all of these qualities, because ये कोई पैदा नहीं होता इन सब चीजों को लेकर, और अगर पैदा भी हुआ है तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं जो डेवलप नहीं की जा सकती। देखो टैलेंट आई स्टिल फील इज समथिंग दैट यू born with, बट स्किल एंड कैपेबिलिटीज इज समथिंग दैट यू कैन डेवलप एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो इसीलिए अगर वो मुझे ऐसा कोई दिखता है तो आई शुड लर्न फ्रॉम हिम, ठीक है। आई शुड सिट डाउन टू हिम with him, talk to him, ask him these questions, and I'm pretty sure he or she will feel very privileged and very happy that a young person is really interested in them, because एक तो मैं बताती हूँ compliments take you a very long way, ठीक है। if you compliment somebody, you listen to somebody, you ask the good right questions, you're mannered, well mannered, ठीक है, तुम्हारी personality अच्छी है, तो ये चीज है ना लोग तुम्हें सुनते हैं, ठीक है। दूसरी टिप मैं इस बात पे दूंगी, when you want to talk to your seniors, when you want to leave a good impression, is dress well, ठीक है। because see, when you dress well, that means you've put efforts into your, you know, your looking, and that is not a bad thing. Investing in yourself is not a bad thing. And see, people do judge a book by its cover. Sadly, that is the truth of the industry. It's the truth of the world. So if you're dressed well and you're speaking well, I would definitely talk to you, okay? But if you make a point but you're not dressed well, you're shabbily dressed, okay? आजकल तो कोर्ट में झाड़ पड़ जाती है बड़े बड़े एडवोकेट्स को। Why do you think, you know, just because of clothes? Yes, just because of clothes, because that is how looking good or looking sharp is important. तो मैं ये advice करती हूँ, you know, to get this, you know, how to dress sharply, how to dress appropriately is, you know, you dress for the role that you're seeking out and not dress for the role that you're in. So you might be a student today, but you're planning to become a litigator tomorrow. So start dressing like a litigator, because आपकी mindset वैसी होती रहेगी. So, you know, convert your mindset into a person that you want to become. नॉट स्टेइंग इन कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लाचार बेचार एकदम बेसहारा बच्चा हूँ। नहीं, ड्रेस लाइक, act like, feel like, imitate that personality, like, you know, give out that aura that, you know, I am a law student, I'm going to be soon a great big litigator tomorrow, I am going to be a big corporate lawyer. Have that personality। किसका खराब हो रहा है, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आजकल की दुनिया में। लोग दो बातें बोल देंगे, कोई नहीं, कल वही चार लोग जाके तुम्हारे पास आएंगे 5-6 साल बाद when you're doing really well in life. So it doesn't matter what other people think. Just do it for your own sake. That's what I keep telling people. Secondly is drafting। जैसे मैंने बताया था ना कि ड्राफ्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब इंटर्नशिप्स के ड्यूरिंग ही सीखते हो। कोर्सेज कर लो, बिल्कुल करो, ठीक है। वो तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, और व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज पेटिशन, व्हाट इज सूट। बट दे माइट गिव यू अ ड्राफ्ट ऑल्सो, दे माइट गिव यू अ टेम्पलेट ऑल्सो, बट I'll tell you, templates are very unique to every lawyer. I'm sure, you know, मेरे पास जो आज मैं जो ड्राफ्टिंग करती हूँ, मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बिल्कुल कॉमन होंगी, ठीक है, बट मेरे कॉन्ट्रैक्ट और विकास के कॉन्ट्रैक्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। सी दैट इज द रीजन दैट पीपल हैव सो मेनी लॉयर्स, पीपल देयर आर सो मेनी लॉयर्स आउट इन द वो। नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो हर कंपनी में तो फिर कोई लॉयर की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज एक ही ड्राफ्ट सभी यूज कर रहे होते। नहीं, सो ईच लॉयर इन ईच कंपनी हैज देयर ओन ड्राफ्टिंग स्किल्स। हाँ, essential elements, as I said, boilerplate clauses same होते हैं, but altogether the entire contract is entirely up to me and the organization that I'm working with. So इसीलिए मतलब ये सब, बट आप इंटर्नशिप में सीखते हो, ठीक है, बिकॉज यू विल डेवलप योर ओन स्किल। यू विल सी कि आपके सीनियर्स 10, अगर आपने 10 इंटर्नशिप्स करी है तो 10 सीनियर्स अलग अलग टाइप के ड्राफ्टिंग करते थे, तो उन 10 लोगों का मिला के अब आपकी ड्राफ्टिंग वुड इंक्लूड। एंड व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री यू विल लर्न फॉर मोर पीपल। तो एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा बन जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ डीएनए स्कैन दैट यू विल क्रिएट ऑफ योर ओन। क्योंकि अब जैसे इतने सारी जेनेटिक डेटा है, ठीक है, और आपका डीएनए इज मच लाइक, आपका जो डीएनए स्कैन आता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर एंटायर पर्सनालिटी, सिमिलर बट डिफरेंट, ठीक है। सो इसीलिए हाउ डज दैट हैपन व्हेन डीएनए मिक्सेस। सो सेम गोज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, ड्राफ्टिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि आपने इतने जगहों से सीखी, आपने कॉलेज से सीखा, अपने प्रोफेसर से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, इंडस्ट्री में सीखा, तब जाके आपने अपना कुछ फाइनलाइज किया। तो ये करने के टाइम पे ही पता चलता है। कोर्स मैं वही कह रही हूँ, जैसे आर्बिट्रेशन का आई वाज रिसेंटली सीखिंग और देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन आर्बिट्रेशन, एंड दैट इज गुड बिकॉज आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ना जरूरी है। बट आर्बिट्रेशन होता कैसे है वो आपको इंटर्नशिप में पता चलेगा, आप जब काम करोगे तब पता चलेगा।
बट बेसिक डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन तो यू लर्न इन लॉ स्कूल ऑल्सो, ठीक है. आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट होता है, ये सब तो यू लर्न. बट आप खुद जब करोगे तब बहुत ह्यूज ह्यूज डिफरेंस आ जाता है. सो दैट इज व्हेन इट इज इम्पोर्टेंट. फिर तीसरी चीज व्हेन आई से कि यू नो व्हेन यू आर इंटर्निंग यू शुड नोटिस इज कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड हाउ लाइक यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन कोर्ट. ठीक है, हम जैसे लॉज पढ़ते हैं, लॉज अ गुड ग्रेट. अब जैसे हम देखते हैं नो आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट, हम मूवीज में देखते हैं, शोज में देखते हैं, बट प्रोबेबली दैट हैपेंस लाइक थर्ड और फोर्थ स्टेप होता है ऑफ अ सूट. ठीक है, उससे पहले ना सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है. आप एक जज के सामने भी नहीं जाते, उससे पहले ही आपकी पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज देयर वर फॉल्ट्स, देयर वर एरर्स. ठीक है, आपने फाइलिंग ढंग से नहीं करी है, पेज मिसिंग है, कुछ मिसिंग है. सो दिस यू लर्न व्हेन यू आर इंटर्निंग एंड व्हेन यू एक्चुअली बी डूइंग, व्हेन यू आप वो मुंशीज के साथ जाते हो, जो क्लर्क्स होते हैं ऑफिसेज में, उनके साथ घूमते हो, जो क्लर्क वाले भैया होते हैं उनके साथ जब आप जाते हो, आपको जब वो सीनियर बोलता है नहीं ई कोर्ट फाइल करो, जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तो भी पूरी फाइलिंग ई होती है. ठीक है, इंटरनेट पूरा ऑनलाइन होती है. डिस्ट्रिक्ट में अभी भी दिल्ली में तो एटलीस्ट दोनों चलता है, बट सून एवरीथिंग इज गोना बी डिजिटली. तो इनका भी इतनी बार एरर्स निकलते हैं, कितने सीनियर्स को आज भी फाइलिंग नहीं आती. ठीक है, सो यू नो यू हैव टू लर्न दिस. ठीक है, एंड दिस puts you above a lot of like you know puts you above the crowd. कल को if you go to another internship and you say कि sir I know how to मतलब ई कोर्ट्स में कैसे फाइल होता है मुझे पता है, तो पता है आपको कितना लेवरेज मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हु जस्ट वेंट देयर थ्रू इवन जैक. दैट्स व्हाट आई सी. तो इसलिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में क्या मैनरिज्म्स होते हैं, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं एक सूट फाइल करने की, ये सब पता होना चाहिए. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप और अ कॉर्पोरेट लॉ ऑफिस, आपको ये सब बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए बिकॉज दिस इज technically out there, it's free of cost. This information, this knowledge is free of cost, and every lawyer should know this. Every advocate who's calling themselves an advocate should know this. ठीक है, फिर I think as a law student that I learned and a skill that I practice to date and I think has made me successful if time management and organizational skills. I think these two, because a lawyer ends up doing multiple things together. जैसे मैं अभी practice कर रही हूँ, ठीक है, मैं LLM कर रही हूँ, मैं career coach भी हूँ. तो आई गिव अ लॉट ऑफ सेशंस आई टेक, जैसे आज मैं एक सेशन भी कर रही हूँ, एंड येट आई एम इन अ डिफरेंट सिटी एंड आई एम प्लानिंग एंड येट टेकिंग अ सेशन फॉर एन आवर विद माय टाइम ऑन माय हैंड्स टू चिल आल्सो. सो हाउ डिड दिस हैपन? बिकॉज ऑफ माय मैनेजमेंट स्किल्स. पहले बहुत ओवरवेलमिंग लगता था कि लॉ स्कूल भी जा रहे हो, इंटर्नशिप भी जा रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बट वंस आई गॉट अ हैंग ऑफ इट, व्हेन आई डिड मल्टीपल इंटर्नशिप्स, आई लर्नड दैट हाउ टू डू इट, how to get along with it, कैसे मैनेज करते अपना टाइम, अपनी चीजें, अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी लाइफ. So all of this I learned during internship. So time management and organization skills will take you long way throughout your life. So learn that during legal internships. अब मैंने जैसे बताया ना कि आप बहुत कुछ पढ़ते तो बहुत हो, जैसे चार दीवारी के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ते हो, बट वो अप्लाई कैसे होता है. ठीक है, अब जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि चेक बाउंस का केस आता है, NI 138 का मैटर है. ठीक है, अब उसमें टेक्निकली लॉजिकली जो हमने लॉ में पढ़ा है कि क्या अगर आपने चेक बाउंस किया, अगर किसी ने मेरे अगेंस्ट यू नो एक केस फाइल किया, मैंने उनको एक चेक दिया जो बाउंस हो गया, तो आई एम लायबल टू पे एंड गिव देम मनी एंड प्लस इंटरेस्ट. बट कल को कोर्ट में नेसेसरी नहीं है कि वो होगा, it has to be proved in court, but the law says that he has to get it because I'm the one who's defaulted it. But what if there is a reason, what if there's an exception and everything? So you see all of this, the practical application of it happening in court. अब जैसे पुणे पोस्ट केस ले लेते हैं. ठीक है, काफी लोगों ने बहुत कुछ लिखा. ठीक है, कि व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट गेट अरेस्टेड, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड, ये वो, एंड इमोशनली लोगों ने लिखा. बट वी लॉयर्स लर्न there has to be, हम लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल इज मच हायर देन अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी. ठीक है, कि मे बी 2 people have died, but you're forgetting that he's less than 18. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर वो जेल नहीं जा सकता है. ठीक है, उसकी बेल अप्रूव होनी थी. ठीक है, सैडली दैट इज द प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड दैट इज सेट बाय लॉ. ठीक है, मे बी वी सी अ रिफॉर्मेशन सून, वी सी चेंजेस सून, but that was supposed to happen and sadly that is the case. But अब क्या कर सकते हैं? But we lawyers know it. हमारे emotional intelligence is much higher as compared to other students, other people in the industry. तो इसीलिए but how do we do that? How do we see it when we happen in court? When हम देखते हैं proceedings, देखते हैं, जब हम judges की बातें सुनते हैं, maybe the कल judges statement में दे देता नहीं कि the heinousness of the crime is so high, so this person will be taken as an adult and will come under IPC or BNS now as we know of it. ठीक है, तो now bail तो नहीं होगी because 2 इंसान मार दिए हैं, he's
फ्रॉम अ रिच फैमिली एब्सकॉन्ड कर सकता है, एविडेंस टैम्परमेंट तो हो ही रही है, ब्लड सैंपल्स को जुटलाया गया है, तो नहीं, वी विल ट्रीट हिम एज एन अडल्ट, कीप हिम इन लॉकअप, ठीक है, वी द judge could have easily done that, ठीक है, but he or she just did not choose to because of some aspects of law which you will see when you're actually going into an internship. आप देखोगे कि केस में एक्चुअली इतना easy नहीं है कोई भी होना, सारे